Very good evening, students. Beta, we have already started with, language of chemistry. In first class, we have studied about symbol, valency, radical, compound formation. I did, okay. And then we have done a lot of examples also. And today, beta, we are going to study about part two of this particular topic, where we are going to study about how to find atomic mass, molecular mass, and percentage composition. So now tell me, Veda, when I talk about atomic mass, so it will be basically mass of an atom or not? Tell me. Yes. Okay, so now in an atom at the center, what do we have? Nucleus. Nucleus. And in nucleus, what do we have? Protons and neutrons. And what is moving around them, Veda? Electrons. Yeah, so here basically what are moving them around in the circle, Veda? Electrons. Right, na, Veda? But you just tell me, Beta, where is your, when we talk about electrons are outside here, right, Beta? Yes. So, what is the mass of proton? Do you all know? Mass of proton. Okay, if you are studying your ninth grade, mass of proton, we take it as how much, Beta? 1. Neutron also, we take it as 1. It is not exactly 1, huh? Beta, I'll tell you, it is 1.0078. This is 1.0086. 1 point, 1 point. What happened? अच्छा ये 7 दिख गया हो गया 1.0086. Hey, electron का what mass we take? 0. But actually it is not 0, but it is 0.00055. Okay, so now tell me, electron का mass is negligible or not? Tell me. Yes. So where is the mass concentrated? In the nucleus. Right? So basically mass of proton and mass of neutron we are doing. Okay. Now, beta, early we used to consider only hydrogen. Hydrogen atomic number is 1, mass number is 1. So how many proton it will have? 1. How many electron it will have? 1. How many neutron it will have? 0. A minus Z, right, beta? So I'll get 1 minus 1, 0. Right? So what is the mass of one hydrogen if I take hydrogen when I write only 1? So basically it has 1 proton inside the nucleus and only 1 electron mass is negligible. So what is the mass of 1 proton? 1. 1. So earlier scientists took hydrogen atomic mass as 1. why? Because it was having only 1 proton. They took it as how much, beta? 1. Because it was having only 1. Acha. Then, beta, if I wanted to say my sodium mass is 23. Sodium mass is 23. So it is how many times heavier than the mass of hydrogen? Bolo, mass of hydrogen is 1. So it is how many times? 23 times heavier. Hydrogen ka mass was 1. So 1 into 23 will be what, beta? 20. So can I say sodium is 23 times heavier than hydrogen? But scientists discarded this idea. Why? Because hydrogen used to have isotope. Do you remember, beta? Hydrogen have isotope. Yes. 2 and 3. ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? Yes. And hydrogen, beta, it is very difficult to store and all, right? It is a gas. So they discarded hydrogen. But in this case also, beta, I was finding the mass of sodium in relation with whom, beta? In relation with hydrogen. So in relation means relative to hydrogen, it was how many times heavier? 23. Therefore, we used to call it as relative atomic mass. क्यों ये word relative आया? Because we were relating it to hydrogen. We were relating it to hydrogen. But hydrogen का problem था, we used to have isotope. So scientists for our better understanding they took carbon as the reference. किसको reference लिया? Carbon. तो इन कार्बन का मास कितना होता है? 12. कितना है? 12. लेकिन बेटा अगर हम लोग को कभी भी बनाना है तो 1 बनाना पड़ता है कि नहीं? तो अभी तुम ये कार्बन 12 को 1 कैसे बना सकते हो? कार्बन का वजन कितना है? 12. तो इसको 1 बनाना है तो मैथ्स में तो क्या करेगा बेटा? 1/12 इंटू 12 करेगा कि नहीं? तो 1/12 इंटू 12 करेगा तो आंसर कितना आएगा? 1. तो या 1 ओनली ना. 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 इज 1 ना बेटा? या ओके. अब बेटा मुझे बताइए, इफ आई से सोडियम इज एटॉमिक मास इज 23. नाउ आई वांट टू डिफाइन दिस इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इट इज हैवियर with respect to carbon 12. How many times it is heavier, बेटा? कैसे 13? How many times? तो बेटा ये 12 नहीं. अरे बेटा ये देखना. It is how many times heavier? 23 times heavier than 1/12 the mass of carbon. 12 into 23 करेगा तो तुमको ये 23 आएगा. कैसे? अरे बेटा ये तो 1 है ना बेटा.
तो 1/12 × 12 × 23 करो, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 × 23। बेसिकली बेटा हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन होता तो 1 होता था। अगर हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैं कार्बन 12 ले रहा तो उसको भी मुझे 1 करना पड़ेगा कि नहीं? तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 कितना होता है? ये पूरा होके फाइनली 1 ही होता है कि नहीं? बोलो। तो वी आर रिलेटिंग इट विद वुड, कार्बन। Online students, are you all getting it, dear Ananya and Vinny? Hello. Yes. Yes, sir. Very good. So if I say, beta, my oxygen weight is 16, so it is how many times heavier than carbon 12? Bolo. 16 times heavier than 1/12 of carbon 12. तो ये 1/12 cancel, तो 1 into 16, 16 आएगा कि नहीं? बोलो। So beta, relative atomic mass. Now, whenever we define relative atomic mass of an atom is equal to the, how many times an atom is heavier than 1/12 the mass of carbon 12. So now I want all of you to underline this, and if you feel very cool, you let me know. Oh, page number 11. You have to pick. Earlier, what we used to take? Hydrogen. And now what we are going to underline? Carbon 12. ठंडी लग रहा है बेबी? ठंडा है तो बोलो, हम तुमको टेम्परेचर बढ़ा के देगी। Now this is very important. What is the definition? Look, hydrogen was chosen initially. ठीक है कि नहीं? Yes. बट अभी हम लोग हाइड्रोजन नहीं लेते, अभी हम लोग क्या लेंगे? बोलो ना। पेज नंबर 11 में है मैन। पेज नंबर 11. What we are going to take? RAM, relative atomic mass. Look, of ये definition पूछते हैं बेटा. It is of an element is the number of times one atom of an element is heavier than 1/12 the mass of carbon 12. 1/12 the mass of carbon 12. Clear है? Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Okay, now बेटा we are going to go for the next part. ये अगर मैंने एटॉमिक वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया, हाइड्रोजन का 1 था तो मैंने ऐसा लिखा 1 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना था? 16, तो मैंने क्या लिखा? 16 ग्राम। सोडियम का 23 था, अगर मैंने लिखा 23 ग्राम, तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक। ओके, और ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम एटम। वी आल्सो कॉल इट एज Gram atom. चलो बेटा, तो अंडरलाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूल क्या होता है पहले वो मेरे को बताओ पहले। डन डन डन। ये बेटा अगर मैंने H लिखा तो क्या होता था? इफ आई राइट ओनली H देन इट इज व्हाट? एटम। बट इफ आई राइट H2 देन Molecule. molecule. O means atom, O2 means molecule, Cl means atom, Cl2 means molecule. Union of atom, right बेटा? अच्छा, ये भी मॉलिक्यूल है, CO2 यूनियन ऑफ एटम। आर यू गेटिंग इट? तो बेटा अगर मुझे अभी मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो अगर मुझे इसका मास निकालना है तो व्हाट आई राइट? H2 में कितना H है? बोल बेटा 2H। एक H का वेट कितना था? 1। दोनों का मिलकर आंसर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी पूरा डेफिनेशन था, इंस्टेड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास व्हाट वर्ड विल यूज? रिलेटिव मॉलिक्यूलर। जहाँ पे भी डेफिनेशन एटम है उसके जगह पे वर्ड क्या आएगा? Molecule. मॉलिक्यूल। 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 कम ऑन। So RMM of an element is the number of times, underline करो, number of times। यहाँ पे खाली क्या आएगा? यहाँ पे 1 एटम था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? Molecule. 1 मॉलिक्यूल। बाकी पूरा डेफिनेशन सेम। Where is the textbook, man? Where it is? Bhutani, right? You are Bhutani. Wow. Yeah. तो फिर अगर राव नंबर ऑफ टाइम्स और एटम ऑफ एलिमेंट्स एवरीथिंग 1 मास पावर, तो फिर ये आरएमएम 1 मॉलिक्यूल। हाँ, तो बेटा अभी टेल मी बेटा, अभी हाय oh yeah bro, oh yeah bro। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे? मॉलिक्यूलर मास हो गया ना बेटा। तो अभी मैंने बोला H2 मॉलिक्यूल कितना टाइम्स हैवियर है, मतलब यहाँ पे 2 आया, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 इंटू 2। तो ये 2 तेरा क्या था? मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया कि नहीं? H2 था ना बेटा। आई एम नॉट टेकिंग सिंगल एटम ना।
वाकई एनी डिफिकल्टी लिया? No. ओके, अगर मैंने जैसे एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते तो क्या बोलते थे, ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। वैसे अगर मैंने मॉलिक्यूल को ग्राम में Gram एक्सप्रेस किया तो molecule. ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल और Gram molecule. the relative molecular mass of a substance expressed in gram is called as gram molecular mass or gram molecule of an atom. Clear? Yes. वाकई? Yes. अच्छा, अब बेटा लो, अब इसका मास का यूनिट क्या लिखते थे बेटा? AMU. What is the unit? AMU. What is the full form of AMU? Atomic weights are expressed as a simple numbers in atomic mass unit. Please underline कर दो. अम्मो. AMU. अम्मो. AMU. अब बेटा what is AMU? 1 AMU क्या होगा बेटा? It is 1/12 the mass of carbon 12. लिखो. Atomic mass unit is defined as 1/12 the mass of carbon 12. 1/12 the mass of carbon 12. 1/12 the mass of carbon 12. Clear है बेटा? Now, beta, in exam, beta, they will always give you atomic mass. So, no need to by heart. No need to. Okay. I want you to now, we are going to do a lot of numericals. So, please start writing this, whatever I'm giving you. Yeah, in the notebook, bro. We are going to use one chemistry notebook. Beta, in exam, they will give you RAM. They will give you. So no need to by heart. No need to by heart. RAM they will always give you. Always. So beta, यहाँ पे देखो ये लिखो पहले RAM. This will be always given to you all. Girls, can you see this? Hello, girls. Yes, sir. This Bihani beta, last class also we are not there. Yeah. Yeah, tell me, dear. 1 second, sir. It's still loading for me. I can't see it. Loading. Your network is weak. You stay nearby only, no, dear. Can you see this RAM now? Oh, the screen is blank for me. Oh my God, why your screen is blank? Your network problem, bro. Yeah, now I can see. Oh, great. So you are in Mumbai or out? No, here only. So you stayed Kalpataru, na, beta? No, in Raheja. So it is 5 minutes walk from the class, baby. You should come now. Yeah. Yeah, I'll come next time. These atomic mass we don't have to buy at. They will be always given. They will be always given in exam. So we'll never buy hard those. Yo, bro. Sir, do we have to write this? Yes, we have to write this, bro. This Ram. Ram Bhagwan. Jai Shri Ram. This is Ram. That is Jai Shri Ram. What they did in atomic structure for you all. Just started. John Dalton and all those theories and all those things is not there. Directly we'll start from atomic number and mass. अबे ये वैल्यूज लिखनी है बे, ये क्या कर रहा है? हाँ। ना मुन्ना ना, यही तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना। चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा अभी आपको एग्जाम में मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, फाइंड RM ऑफ, कम ऑन, फर्स्ट सम बेटा, फाइंड RMM means relative molecular mass of
carbon dioxide. What I'll give you? Find RMM of carbon dioxide. Side. Acha, and what other thing I will give you? As I told you, we are not supposed to by heart this. So this they will be giving you. Carbon is how much? 12. Oxygen is 16. This will be given. So how to do? How to do? Come on. So just substitute the values. पहला नहीं, पहला देखने का CO2 का फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर्मूला क्या है? Can anyone tell me what is the formula of carbon dioxide? CO2. So CO2. Dun, dun, dun. How to find RMM? चलो बेटा. ए, सोलंकी ना बेटा. इसमें कौन से अलग अलग एलिमेंट तेरे को नजर आ रहा है? पहला कौन है? कार्बन है और वो ऑक्सीजन, दोनों को लिख देने का. कार्बन कितनी बार है बेबी यहाँ पर? ये एक ही बार है, तो 1 टाइम. ये वो ऑक्सीजन कितनी बार है यहाँ पर? 2 टाइम. तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 2. और इसके बीच में क्या साइन आएगी? बोलो बेटा. प्लस. क्या आएगा? प्लस. 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 अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. कम ऑन. 12 plus 2 into 16. So what you are going to get? 32. So what will be the final answer? 44. 44. 44. 44 के बाद कोई कुछ नहीं, ऐसा यूनिट नहीं. अगर वो लोग पूछेंगे तो. अदरवाइज अगर टेक्स्ट बुक में कोई यूनिट दिया नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा लिख सकते हैं. अम्मो, अम्मो या ग्राम, जो भी अगर दिया रहेगा एग्जाम में. कुछ नहीं दिया रहेगा तो चलेगा. क्लियर है? Yes, sir. Now I want you to do the next sum. Come on, you all can do this on your own. Girls, copied this. Vinny and Ananya. Hello. Yes, sir. You have to write, huh, bros? If you don't write, then there will be a lot of problem. Then you don't tell me. Okay, hello. Yes, sir. Finish writing. yeah, Viru. चलो बेटा, तो ये आपको आ गया सब लोगों को. नेक्स्ट सम. तैयार हो? Yes, sir. फाइन RMM ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ऐसा चलो कॉपी करो ये सब. लिखा है ना? लिखा है, देखो को क्वेश्चन नंबर लिखा है ना भाई? लिखा है. लिख 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 शक लगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड. नाम नहीं छुपाए कि नहीं? बोल बाबा. NO2. 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 तो आपको ऐसा मिलेगा. So in our school, they sometimes give the formula also. Yeah, they can give, but sometimes they may not give. Then what you are going to do? N is there and O is there. How many N? 1. 1. How many O? 2. बस. फिर ये वैल्यूज डाल दो. देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं. अफसोस, ये सही जवाब है. गर्ल्स, आर यू गेटिंग इट? Yeah. Yes, sir. I got it. Mirani, it was right. Mirani. Okay. Chalo, come on. Now the next sum. Are you all ready? Are you ready? Find the RMM of sulfuric acid. Come on. Sulfuric acid. H, वो अभी फॉर्मूला तुमको याद रखने का है बाबा. पूरा देश जानता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला. टेन. ये वैल्यूज आपको देंगे तो बाय हार्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको. लेकिन फॉर्मूला आना चाहिए रे बाबा. फॉर्मूला नहीं आएगा तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा. You should know the formula. You should know the formula. Sir, I'm getting 90, 97, 98.
how many what is the formula of H2SO4? Look. Acha, now you tell me Bhutani, how many H? How many H? Two. How many S? One. How many O? Four. Then what do you have to do? Plus. Aisa plus. It puts a value of hydrogen is how much? 1. Do you know the addition beta properly? So this is 2 into 1 and sulfur value was how much beta? 32. Oxygen is 16. 97. Acha, 2 into 1, 2. 2 into 1 ka table you know beta? I'll teach you. 1 ones are 1. 1 twos are 2. 1. Shut your mouth, man. Why are you laughing? Well, you did this mistake, na beta? This one, na? Ah. And this is the 32 plus 64. So how much answer will get? 98. Are all of you getting it? 98, beta? Yes. Easy. Chalo. Now we are going to do ammonium sulfate. अमोनियम पहला इसलिए लास्ट क्लास में बताया था वो कैसे बनाने का टेबल। हाँ, अमोनियम का कितना है? अमोनियम NH4 अमोनियम NH4 1 प्लस। सल्फेट का कितना होता है? SO 4 2 माइनस। इंगे पिंगे व्हाट यू विल गेट? इंगे NH4 brackets NH4 NH4 ब्रैकेट 2 SO बस इतना। ये आ रहा है आपको कि नहीं? तो चलो अभी करो। कैसे कैसे कैसे? अमोनियम का कितना है? 1। सल्फेट का क्रिस क्रॉस। तो फिर इंगे पिंगे इंग लाइक दिस। चलो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया इसलिए बेटा मैंने लास्ट क्लास में वो फॉर्मूला कराया था। फॉर्मूला नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। आज कमाएगा तो कल खाएगा, ठीक है ना? हाँ तो अभी बेटा देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एन कितने लोग इधर को नजर आ रहा है? एक एन है, एक एच है, एक एस है और ओ। कितना एन है रे सांभा? हाँ तो 2 है। कितना एच है रे? 4 और आगे 2 है तो 4 into 2 एस कितना है? 1। कभी भी बेटा ये ब्रैकेट आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ वेरी वेरी गुड स्क्वाली बॉय। एंड वो ऑक्सीजन कितना है? 4। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। देख लो। तो क्या कर रहे हो? हैचिंग एग्स ऑफ व्हाट मैन? Done, done, done. Chalo. Come on, do this. Find the ramamam of calcium phosphate. कैल्शियम का वैलेंसी कितना है? फॉस्फोरेट का कितना है? CA3PO4 bracket 2 brackets. Understood, girls? Are you getting what I'm doing? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So we'll write the formula of calcium phosphate. Come on, bro. कितना कैल्शियम है? 3। अच्छा करो 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 करो। चलो I'll wait. I'll wait. फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑल द 3 एलिमेंट बेटा। कौन है? कैल्शियम है, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन। कितनी बार है कैल्शियम? 3 है तो देखा ऐसा लगेगा 3 ब्रैकेट में। फॉस्फोरस कितना है? 2।
और ये 4 into 2 वो कितना हो जाएगा 8। You're 310. Yours can tell. 310 बराबर है, 310 बराबर है. So 310 बराबर है. एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। क्या यार एडिशन नहीं आता है तुम लोगों को? व्हाट मैन, एडिशन नहीं आएगा तो क्या करेगा आज? Sir, I got 3. चलो नेक्स्ट। ग्लूकोज, कम ऑन, फाइन आरएमएम ऑफ ग्लूकोज। Easy. ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज बिस्कुट, ग्लूकोज बिस्कुट। Oh yeah, bro. Oh yeah, boy. ग्लूकोज, ग्लूकोज बिस्कुट, पार्ले जी। 180. बहुत अच्छे माशाल्लाह, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। Come on, bro. Yeah. Oh, I mean, 6 into 12. आ गया सभी लोगों को बेटा। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला था बाय हार्ट करने को रे बाबा। छतरी को भी था उसमें, वेरी गुड। यस, छतरी को सबका फेवरेट. छतरी को ये सब हम लोग ने किया था, याद आ रहा है कि नहीं? एसिडिक Yes, एसिड sir. ये सब। अच्छा, लेकिन इसमें से बेटा आपने को नहीं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ये वाला हम लोग बहुत important। बेटा ये देख, जिप्सम है ना बेटा, जिप्सम, इसमें देख बेटा, ये डॉट H2 का मतलब क्या होता है? लूज केमिकल कॉम्बिनेशन. लूज केमिकल कॉम्बिनेशन में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। 2 बार है तो पानी को हाइड्रा बोलते हैं, 2 बार है तो डाइहाइड्रेट। पल्लू विट्रियल है बेटा, CuSO4 डॉट 5H, तो 5 मतलब पेंटा हाइड्रेट, हाइड्रा मतलब पानी। ग्रीन विट्रियल को बेटा आ गया FeSO4 डॉट 7H2। ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट इज Na2SO4 डॉट 10H2 and caustic soda is Na2CO3 डॉट 10। ये ऑप्शन इज 7। अभी इसका कभी भी अगर आपको पूछा बेटा उन्होंने, सपोज बेटा मैंने तुमको पूछा फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्लू विट्रियल, तो ब्लू विट्रियल में आप क्या क्या है बेटा, ये पूरा है कि नहीं? कॉपर है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. हाँ बस, अभी एक काम कर दे पहले, चलो कॉपी करो, फाइन रामम ऑफ ब्लू विट्रियल, RMM। पॉइंट का वो बताते, पॉइंट वाला जो पार्ट है उसको हम लोग प्लस करते हैं भाई, बताते पहला, इसलिए मैंने उसको ना सर्कल में रखा है डॉट वाइज। ये गर्ल्स आर यू गेटिंग इट और नॉट? विनी एंड व्हाट, विनी एंड व्हाट, विनी एंड अनन्या। Yes, sir. विट्रियल, विट्रियल, झींगे, अंधे, कॉपर एक सर ऐड करना है डॉट को भी. पहले देखो बेटा, CU कितना है, ये डॉट वाटर को अलग से हम लोग लिखेंगे।
Cu1 है, सल्फर भी 1 है, O कितना है 4 है। अभी बेटा डॉट वाटर को मैं साइड में लिख सकता हूँ ऐसे, देख बेटा, ये देख। Oh, five graphics. अरे राजा, ये देख, ये 5 था कि नहीं? Yes, Cu sir. एक था, S एक था, फिर यहाँ पे क्या था बोलो? सर तो ब्रैकेट में बहुत 90 आएगा। ये Cu1 था तो 1 आया, सल्फर 1 था तो 1 आया। अभी 5H2 में बेटा वो लोग O कितना था 4, तो 4 आया। फिर 5H2 को हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस, ब्रैकेट में भी कौन कौन था इसके आगे? 2H और 1O। ठीक है, यस सर। अब ये वैल्यूज डाल दो अंदर। 10 80 90 154 156 बोलो भाई। 250 सर। हेलो, 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 क्या हुआ? वो फाइल में दोनों को हाँ consider करना है। हाँ, अरे सब अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना हम लोग को। हाँ हाँ, फिर तो वो क्या हो जाना चाहिए? plus five का एक बार okay, and then there's a times plus 62 state, okay, the 32. भेज दे। Oh, हाँ, नहीं 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 नहीं, भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे भेज दे। सही में? हाँ भेज दे, तेरा निकलेगा तो सही, वरना बाद में और कोई और डाल दे जाए। अब 10 और 9 हाँ तो कर हाँ, नहीं नहीं नहीं, तू डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे। निकाल दे निकाल दे, ठीक है ना? चलो बच्चे लोग, क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचे हैं? देख बेटा, H का वैल्यू कितना था 1, O का कितना था 60। अब ये समझे, डॉट वाटर का मतलब, डॉट का मतलब यहाँ पे प्लस डालने का, ये 5 था तो यहाँ पे 5, फिर पानी के आगे क्या था 2H, तो 2H प्लस O। फिर देख ऐसा सब्सटीट्यूट, 2 प्लस 16 18, तो ये ऐड करो, 250 आया कि नहीं? यस सर। कर सकते, लेकिन तो सब लोग तुम्हारे इतना स्मार्ट नहीं होते। जैसे वो क्या कहना चाहते हैं, ये 4 ऑक्सीजन है और ये 5, तो टोटल 9 ऑक्सीजन, ऐसा तू बोल रहा है ना बेटा? हाँ, फिर H डायरेक्ट है, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करो ना, हमने जैसा किया वैसा। ठीक है, अभी ये खुद से करोगे, आर यू रेडी? फाइन, आ रहे हैं मैं गिरा हुआ था, ये काफी गिरे हुए लोगों का नंबर है यहाँ पे 9 ओके, नॉट अ सर ने दोस्त कर दिया। प्रॉब्लम। आर यू रेडी? चलो, फाइन आरएमएम ऑफ ग्लोबर्स, ग्लोबर्स, ये देखना, Na2 है, देखना सब मैंने दे दिया है। चलो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस ऑन योर ओन बेटा। नहीं बताएंगे या आपको करना है खुद से, देखो बाकी सब मैंने अभी बता दिया है। Na2SO4, ये 2 बराबर दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये Na2, ये 2 है और ये SO4 है। डॉट 10H2O, डॉट 10H2O। गर्ल्स, आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। विनी Yes, इज sir. व्हाट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. विनी एंड अनन्या, Yeah. अनन्या, नया नया, अनाना, अनानस। Come on, bro. अरे देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है, सबको देखेंगे, सबका बदला लेगा फैजल, डोंट वरी।
3 plus 3 22 ना 332 वो भी ना मेरे को 332 तो वो है 46 46 32 64 एक ट्रिक बताता हूँ, वाटर का है ना हमेशा कितना होता है 18, तो 10 वाटर है तो कितना हो जाएगा 180। बाकी सबका तुम ऐड कर सकते हो कि नहीं? 46 32 चलो बेटा मैं देखूं क्या। यस सर 332 बराबर 322 332 है 322 ना सर दिखा दो 322 दिखा दो, यस सर दिखा दो। Yes! 322 ये सोडियम बेटा कितना देखना, 2 × 23 46, सल्फर एक ही है। सर मेरे को भी सर मेरे को भी सेम वन तो एडिशन पे रॉन्ग हुआ, ये 180 प्लस 64 प्लस 32 मैथ्स आना चाहिए मैन। कम ऑन ब्रो, इज्जा इज्जा चलेगा। गर्ल्स आर यू ऑल गेटिंग इट और टेल मी, कम ऑन। Yes, sir. I got Got it. चल बेटा आ जाए क्या? 322. Yeah, sir, got या got it, got it. ओके अच्छा चलो बेटा अभी मैं तो अच्छा लेट कॉपी कर रहा है क्या ये लोग? हाँ और है ना, दे रहा हूँ ना बेटा, दे रहा हूँ, दे, दे रहा हूँ मैं सर छतरी को का फाइन रमम रमम ऑफ छतरी को एसिटिक एसिड। छतरी को मुझे भी एकदम ऐसा आज अलग ही फील हो रहा है। कम ऑन ब्रोस। तो यहाँ से लिखा ही नहीं है वो अभी तुम्हारा मर्ज है, हमको मालूम नहीं, हमने लिख दिया छात्र को कुक। अभी तुमको इतना तो समझा, एक कार्बन है, एक एच है और एक ओ है, अभी कौन कितना है वो डाल दो अंदर। कितनी बार कार्बन है? दो ओ भी कितना होएगा दो और एच कितना होएगा? चार वेरी गुड। हाँ सी देखना, एक और एक है, दो इठो। एच कितना है? 3 और एक 4। फिर क्या है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ 2। फिर क्या करने का? प्लस 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 प्लस। फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। टन 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 टन। 60. Benzema plus 12. Benzema. Correct. बेंजमा 12। चल बेटा करीम बेंजमा, चला चलो बेटा। ए भाई हो गया क्या? यस सर क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कर लेना बेटा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट। व्हाट टुडे? न्यू कॉन्सेप्ट। डन डन डिंग 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 डिंग। ओके come on bro, it's best in my time man. No concept we are going to study about atomicity. What do you mean by atomicity? हाँ atomicity। हाँ तो बेताकर मैंने ऐसा लिखा है एटॉमिसिटी। नोबल गैस कैसा रहता है नेचर में? एक ही होता है कि नहीं? क्या वो किसके साथ कंबाइन हो सकता है क्या? तो हीलियम अगर अकेला लिखा है तो उसका एटॉमिसिटी कितना है? 1। हाइड्रोजन में आए एच कितना है? यहाँ पे देखने, ये इधर देख, एच कितना है? 2। ओजोन का एटॉम कितनी बार मैंने लिखा है? वो 3 टाइम्स, तो एटॉमिसिटी इज 3। P4 का कितना है? 4 एसिड का कितना है? 8 अच्छा अगर मैंने ऐसा फॉर्मूला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिसिटी कितना है? 1
ये लिख लो हेडिंग एटॉमिसिटी। या एटॉमिसिटी लिख। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े क्या? और ये लिखना हाँ तो सवाल ही नहीं बिगड़ू, लिख देने का है, पहली फुर्सत में लिखने का। अच्छा अभी रुक, अभी बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सिटी विल बी 2 हाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन का कितना है 1, ऑक्सीजन का 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 3 3। टोटल वो टोटल हो गया, वो टोटल, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है अपने टोटल की। ठीक है ना बेटा, यस सर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज, what is the meaning? Suppose beta, if I am in this room beta, I am there and this fellow, what's your name? Arjun is there. Okay, so the percentage, suppose मेरा परसेंटेज अगर 10 है तो टोटल रूम का कितना होना चाहिए 100, तो रिमेनिंग इसका कितना होगा 90। सपोज हम मैं है, ये है और ये है, तो मेरा 10 है और इसका सपोज 20 है, तो इसका कितना होना चाहिए 70। वेरी गुड, समझ में आया? Yes, sir. ओके ओके, अभी आ जाते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। फॉर्मूला लिखो, परसेंटेज इज व्हाट बेटा, राइट? परसेंटेज ऑफ, परसेंट, आपको एग्जाम में पूछेंगे परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज व्हाट बेटा, एटॉमिसिटी इनटू RAM इनटू RAM अपॉन RMM ऑफ कंपाउंड इनटू 100 इनटू, 100 हाँ नहीं इतना ढूंढना नहीं है, ये सब दिया रहेगा तुमको, खाली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे ढूंढना है, वो क्या होता है। RRM नहीं दिया रहेगा, RRM हम लोग ढूंढेंगे बेटा, RRM हम लोग ने बहुत बार ढूंढा है ना, RRM, रामा मैम, रामा मैम, तो ये परसेंटेज एलिमेंट कैसे ढूंढना वो भी सब बताएंगे ना, वन एटम क्या रैम और इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट, मैं सब बताते। I'll give you example, don't you worry bro। सर ये आरएनए कंपाउंड क्या है? RMM of compound, relative molecular mass, पूरे का। कंपाउंड Sir, it's element is equal to It is what? percentage element is equal to atomicity into Into RAM RAM upon of that element, RAM of element, ये जो एलिमेंट No, होगा उसका RAM of element, समझी क्या? so is it upon RMM? हाँ, and upon RMM of compound, this I'll give you example. First you just write this beta. First you write this, I'll give you example. You'll understand. It is very 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 चिंदी में, very very चिंदी। बंद कर ले जा बाहर जाके, पता चलेगा तेरे को क्या है, मैं क्या है नहीं पता चलेगा। किसको पता है फैन बंद करने का? हाँ पता है क्या तुझे, पता है क्या किधर है? वो पिलर के अंदर है और उसके अंदर वो सेकंड वाला नीचे से, नहीं मैं ही जाता, रुक जा। लाइट नहीं मैं एक दिन को मैं बताता हूँ, रुक जा, मैं बता के लाइट उड़ा रही बंदा लाइट बंद कर लाइट सारा बंद हो जाएगा सारा बंद हो जाएगा ये बंद जाएगा क्या यार मेरा कोई लाइट बंद नहीं किया करूँ लाइट अरे लास्ट में वो आता है, एक्समैन आता है। पानी चलो बेटा डन, यस सर अब बोलो भाई।
हेलो चलो बेटा आ जाते हैं बेटा हेलो नाउ आई विल टीच यू बेटा हाउ टू डू दिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए दिस इज बॉय ये बॉय नाउ बेटा एग्जाम में आई विल आस्क यू दिस टाइप ऑफ सम फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाई Oxide. लिखो बेटा हाँ बैग दे दे बेटा होना में तरफ बैग बॉटल बैग सब दे दे चल बेटा गिरा हुआ इंसान कितना गिराएगा तू चल बेटा फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ लिखो ये लिखो लिखो ऐसा जैसा मैंने दिया find hey girls I am teaching you how to do this your all doubts will be clear find percentage of carbon and percentage of oxygen in carbon dioxide this will be given to you तो सबसे पहले what you have to do come on ये पूरा कंपाउंड में कौन कौन है बोलो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको ये कंपाउंड हो गया तो इसका आपको आरएमएम ढूंढना पड़ेगा कि नहीं गर्ल्स विल यू कैलकुलेट आरएमएम और नॉट टेल मी बेटा बिकॉज इन माय फॉर्मूला आरएमएम वाज Yes, sir. Yes, sir, we so will. I first carbon dioxide we can calculate RMM चलो अभी किया था ना हम लोग ने now you tell me beta I want to find percentage of carbon so carbon is how many times in this beta tell me look if I want percentage of carbon so carbon कितना टाइम है एटॉमिसिटी कितना है कार्बन का 1 into RAM of carbon upon entire compound who is my entire compound CO2. into 100 easy beta now have you understood girls सर कैसे मुझे समझ नहीं आया कैसे Yes, sir. मेरे को नहीं समझ में आया अच्छा क्या था फॉर्मूला बोलो परसेंटेज Atomicity. एटॉमिसिटी ग्राम अच्छा CO2 में कार्बन कितनी बार है एक तो एटॉमिसिटी उसकी 1 होगी हाँ RAM मतलब मैं किस क्या डालूंगा यहाँ पे कार्बन डालूंगा कि और कंपाउंड कौन था मेरा कंपाउंड कौन था कार्बन डाई ऑक्साइड ऑक्साइड इंटू 100 अब समझा कार्बन का 1 इंटू कार्बन अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड तो ये कार्बन का भी दिया है ना यहाँ पर एक कार्बन का तो क्या होगा बोलो परसेंटेज ऑफ कार्बन बेटा 1 इंटू कार्बन अपॉन CO2 इंटू 100 तो 1 इंटू 12 अपॉन 44 तो आपको आंसर आएगा 27.27%। ऐसा जरूरी नहीं है अभी तू मेरे को बता यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है अरे एकदम सिंपल है मैं कितनी बार हूँ ये क्लासरूम में ऊपर अपॉन पूरे क्लासरूम का वेट तो इसमें कितना होगा हाँ तो रुक जा नहीं ये 2 इंटू ओ है ना ऑक्सीजन का तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 2 इंटू अपॉन CO2 इंटू 100 नीचे वाला हमेशा सेम रहेगा बेटा अच्छा बेटा मैं बताओ जब 2 लोग होगा ना तो खाली आपको है ना ऐसा प्रिटेंड करने का ये कैलकुलेट करने का इसको एक्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करने का क्यों क्योंकि आपने एक का कैलकुलेट कर दिया है तो दूसरे का क्या होगा 100 माइनस दिस हाँ क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होता है ना बेटा 72.73 नो 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 no 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 ये अभी girls have you understood why is this 1 here why is this 2 here Yes, sir. लोग बेटा Yeah. एकदम सिंपल में बताओ क्या सपोज मैंने अगर आपको H2SO4 का आप ओरली बताओ यहाँ पे H कितना है अंदर दो तो 2 है H का अगर परसेंटेज मुझे ढूंढने का है तो अपॉन पूरा H2SO4 इंटू 100 समझा सपोज अगर मुझे सल्फर का ढूंढना होता तो यहाँ पे सल्फर कितना है वन तो 1 इंटू S अपॉन क्या होगा H2SO4 अगर ऑक्सीजन का ढूंढने का रहता तो बोलो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन चार तो 4 इंटू अपॉन H2SO4 इंटू है इजी क्लियर है बेटा चलो बेटा आगे बढ़े ये पहले ये कॉपी कर लो चलो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का कहाँ कैलकुलेट किया है गर्ल्स आर यू गेटिंग इट और नॉट टेल मी Yes, I got it. Yes, sir. hey what your sister is doing this Bihani Khushi Bihani Yeah, she got into dyes. Dias So but what she, she is doing science commerce or what so she's studying 3 subjects right now. She's doing psych, eco, and one more, and then she gets to choose in 12th what she really wants to do. okay not a problem Yeah. not a problem good bravo
चलो डन 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 डन. I want you to do one on your on your नहीं होता है अबे ये ऐसा वो ही है. अगर दो होता तो तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक का मिला तो दूसरा क्या होगा, 100 माइनस होगा. लेकिन अगर तीन होता तो एक दो का ढूंढने का और तीसरे का 100. हाँ, लेकिन लिखने का, दिखाने के लिए, ऐसे उल्लू बनाने के लिए लिखने का. ओके. चलो अभी आपको आएगा कि नहीं, तुमको समझा कि नहीं समझा, हमको कैसे समझेगा. अभी तो हम तुमको सम देता है मैन, हम तुमको सम देता है. अरे यार वो किधर गई. ये हम लोग ने आरएमएम में ये किया था कि नहीं, ग्लोबल सॉल्ट और ये सब किया था. माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे तो याद ही नहीं रहा. ओ माय गॉड. चलो बेटा, आई वांट यू टू डू दिस ऑन योर रुको तो, रुको जरा, सब्र करो. अश्विन गामी हेलो. हेलो. हाँ 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 बोलो, क्या छू તમે. સેમસંગ નું શોરૂમ છે ને, એનાથી આગળ આવજો ને, કેને પણ કહો લેક્મે સલૂન. લેક્મે સલૂન નહીતર વિજય સેલ્સ. લેક્મે સલૂન. હા હા, વિજય સેલ ને બાજુમાં જ છે એકદમ, વિજય સેલ્સ. હા 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 હા, ઓલાનું નહીં, લેક્મે સલૂન ને વિજય સેલ મોટી બિલ્ડિંગ છે, દેખાશે તમને. ઈ સેમ હા, સેમસંગ થી થોડું આગળ આવો, ગોલ ફરીને બ્રિજ ને નીચેથી આવવું પડશે. બ્રિજ છે ને, બ્રિજ ઉપર દેખાય એના નીચેથી જ. અરે પહેલા પહેલા યાર તમે કોને પૂછો ખાલી ઉભા રહીને કે લેક્મે કે વિજય સેલ ક્યાં છે, તમને દેખાડશે. એ સાયન્સ સર્કલ. હા ઠીક છે. હા, percentage of Na, percentage of find percentage of Na, percentage of oxygen and percentage of hydrogen in NaO. अरे NaOH नहीं, मेरे को ऐसा लिखना क्या था, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाँ तो ठीक है बेटा, इसमें आपको ये देंगे एग्जाम में. Na is 23, O is 16 and H is 1. तभी आपको क्या करोगे, सबसे पहले आपको आरएमएम ढूंढना पड़ेगा. आरएमएम में कौन है, NaOH. कितने Na हैं. But I got RMM. हाँ I got the RMM. 23 plus 16 plus 23 plus 40. भाई 40. But you have to do the remaining part. Percentage of Na अभी कैसे ढूंढोगे. How we are going to find the percentage of Na. सर सबका परसेंटेज सेम ही होगा नहीं, 40 वो सर जो फॉर्मूला बोला आपके. हाँ सर अभी क्या क्या ढूंढना है? बेटा एक मेरा कुरियर अरे आया, फॉर्मूला ना. कुरियर में आपकी नोट्स आई है, मैं लेके आता हूँ. चलो अभी ये क्या क्या करोगे. इसमें भी क्या करने का, परसेंटेज ऑफ 57.5 एने का 57.5 एने 57. तो 1 into Na अपॉन Na सर बात इनटू OH into 100. चलो देखो आप लोग, सर वो ओ और एच का भी कर ले. O और H का भी ढूंढो. अपन एनएओएच इनटू 100 ना Davis upon 53.4. ये वैल्यू का आपका 40 है ना 40 है 40 है 40 मिला ना आपने. 40 ना इनटू 100 अपॉन 40 ना अरे करना
223 into तुम लोग क्या करते हो हाइड्रोजन का कट हो गया कितना है कितना हो गया 2.1 हाँ बोल पाए एनए का 57.5 उसके बाद है 40 और 67 की 57 57 और ओ का कितना ओ का है 40 नहीं ओ का 40 है 40%। लिख भाई ओ का 40% पक्का प्लीज प्लीज हाइड्रोजन क्या है हाइड्रोजन का 2.5 अपॉन नहीं 2.5% ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आगे परसेंटेज हो आ गया ना ऑक्सीजन का 40 है और हाइड्रोजन का 2.5 चलो हो गया हुआ क्या तेरा नहीं था मेरे को 20% मिला कितने ऑक्सीजन 40 है 80 80 अपॉन 2 कितना होता है 40 देखो 80 दो 40 ही मेरा बोल 16 upon 40 into 100 अरे ये भी नहीं होता इधर अरे वो हाँ O2 नहीं है और देव हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2.5 बराबर 2.5 परसेंट 2.5% नहीं 2.5 है जा 2.5 चाहिए देखो अभी ये खाएगा 2.5 ये और खाएगा यार कैसे नहीं खाएगा तू लिखोगे 2.5 ए लिख भी दिया सब एक करेक्शन दे चले अरे करेक्शन हाँ अबे यार 2.5 युवा उसको लेके जाना है इधर युवा कर अबे यार 2.5 युवा एक चीजें दे Brazilians जिंक तू नहीं है आया कि नहीं आया आप लोगों को 2.5 yuan गर्ल्स all of you got this or not? Tell me. Sure, I Yeah, got sir. all three of them. कितना आया एने का 57.5 57.5. 40 और 2.5 ऑक्सीजन का 40 और हाइड्रोजन का 2.5 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना था 40 40. 40%। ओके अब बेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला सम है मैं तुमको बताता हूँ मैं एक है ना वो सम लेके आता हूँ बेटा रुक जाओ रुक जा ये वाला सम आप क्वेश्चन कॉपी करो लास्ट वाला ये वाला पेज नंबर 13 पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई वांट यू टू कॉपी दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड सम हाँ मैं बेटा उसको ना बोल देता हूँ सामान ऊपर लेके आएगा करना क्या परसेंटेज लॉस परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है ना क्या इंडिया अरे लेकिन परसेंटेज लॉस अरे भाई ये कुछ और बता रही है परसेंटेज लॉस नहीं होता ना अरे परसेंटेज कंपोजिशन ना कोई चैट जीपीटी में अरे तू ऑनलाइन में वो चैट जीपीटी में बात करता होगा
चैट जीपीटी का बकवास अरे चलता है नहीं है उससे अच्छा डीप से अरे लॉगिन लॉगिन अभी लॉगिन रिकॉर्ड हो रहे हम लोग अरे यार वो अरे वो यूट्यूब पे जाना है डीप से बेटर अरे सर वो सब कट कर देंगे डीप से आप अच्छा चैट जीपीटी को फेस करता है अरे भाई जेमिनी ऑन टॉप जेमिनी हाँ भाई जेमिनी मेटा बेस्ट अरे भाई बेटा बेटा अरे मैं बोलता हूँ ना यूट्यूब बेस्ट तुम्हारा नाम भी आना बाकी है मुझे तो व्यक्ति आया ना मैच में तुम्हारा 100% तू नहीं, 8 में था हाँ तो Overall? सी 96% overall. तेरे को Maths में. मैच अच्छा 100% अरे भाई Maths में. I told you to overall the math में नहीं मैं उसके overall मैच में मुझे 100% क्यों फर्स्ट टर्म हाँ फर्स्ट टर्म Engaging. 40 मार्क का पेपर था तेरे को 80 आया उसमें अरे कर रहा है क्या Oh भाई. अरे एग्जैक्ट सर देख से रिकॉर्डिंग कैलकुलेट पूरा सॉन्ग लिखो Nothing is covered. नहीं Everything is like some action. ये कर रहा चलो छतरी को भाई छतरी पूरा फॉर्मूला है फॉर्मूला छतरी ये चल चुका है 22 मिनट 22 बाय एक दो तीन चार एक दो तीन अरे 1 2 3 4 5 6 7 इतना सर 7 जन आए हैं युवा को डबल हिट करते हैं ये डबल हिट करते हैं कितने लोग आए हो 7 5 दिन ही आए हो नहीं 8 है सही काम और ये क्या इसके नोट्स है ये सर इतने सारे स्टूडेंट्स सर आपने फोर्थ बैच में नोट दिया कि नहीं नहीं जब भी आ रहा है वाओ न्यू वाओ तो सर आगे भी मेरे को इतना सारा पूरा सा क्वेश्चन आंसर सॉल्व है तुम्हारा सर टेक्स्ट के पीछे के सारे क्वेश्चन सॉल्व है वही पढ़ना है Textbook का है. हाँ पूरे textbook. ये पूरे टेक्स्ट वो वही पढ़ना है नहीं मैं बताते जाऊंगा थैंक यू बस सबको मिल गया कैप्टन का लैंग्वेज ऑफ कैप्टन ले लो बेटा ले लो बेटा मैं तो ये बोला for your practice. What are we doing? मेरे को नहीं अरे भाई देखना और योर प्रैक्टिस अरे भाई तू देखना काम कर
भाई ऐसे कर कोई practice नहीं नहीं है अरे भाई तेरे यूनिट टेस्ट में कैसे आ गया टेस्ट में यूनिट टेस्ट पेपर भी है हम लोग यहाँ भी आएगा क्या आरएमएम और वो ढूंढना एग्जाम में मेरा मेरे नहीं को भाई नहीं पता मैं गिवन रहेगा गिवन तो सर इसमें अपन को सिखा रहे आ रहा है कैसे ढूंढने खाली वो सब तो है ना हम बहुत कुछ जान एंटी स्ट्रेट का पता है मुझे ओए और कुछ तो हो जाता है नशा कर जाता है चलो बच्चे कहाँ तक पहुंचे? सर पढ़ना के ये करना है हाँ वो तो सब सर, ये तो है ही नहीं। ये सम आया कि नहीं आया? नहीं आएगा हाँ सर वो 5:2 10 लेना है और 5 और चलो बेटा अभी आ जाओ। अभी सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अभी आपको ये समझा दे कि इक्वेशन दिया है, ये क्वेश्चन कॉपी किया आपने गर्ल्स, हैव यू कॉपीड दिस? व्हाट वी Yes, आर sir. लूजिंग फ्रॉम दिस? Yes, sir. 5 molecules of water. What we are losing from this? 5 molecules of water. So what we have to calculate weight of what beta? Percentage loss will be what? Nothing but percentage of what? ओ आरएमएम भी आएगा और ऐसा भी आएगा। तो अभी अपने को क्या ढूंढने का है? लॉस ऑफ वाटर। तो उसके लिए पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? पूरे का वो अपने कैलकुलेट कर दिया ऑलरेडी। हाँ सर फर्स्ट व्हाट विल कैलकुलेट? फर्स्ट यू विल कैलकुलेट दिस। ऐसा लिखो, पहला इतना लिखो। फर्स्ट आरएमएम ना आया 250। अब आरएमएम के बाद क्या करोगे? अभी अपने को ढूंढने को क्या बोला है? वाटर। वाटर गया ना, कितना वाटर गया? 5 गया। तो क्या करोगे? तो 5 को माइनस कर देना है। नहीं माइनस नहीं करना है, परसेंटेज बोला है ना, परसेंटेज। sorry, तो क्या करूंगा? तो परसेंटेज हाँ तो अभी मैं क्या लिखूंगा? हाँ परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर विल बी हाउ मच, ऐसा करेंगे ना बेटा, ये देख। देयरफॉर परसेंटेज लॉस ऑफ मास। लॉस ऑफ मास मतलब क्या था बेटा? दैट इज बोलना, दैट इज That is the परसेंटेज ऑफ व्हाट बेटा? परसेंटेज ऑफ वाटर। okay. कितना वाटर था? कितना वाटर था? 250 5 वाटर। कितना गया पानी? 5। और पूरा ओरिजिनल क्या था? CuSO4 डॉट 5:2. इंटू 100. सांबर 100। तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? तो 1 मिनट पहले 5:2 का हम लोग तो 5H2 का पानी का तो पता है ना बेटा, 5 × 80 अपॉन ये पूरी कितना था? 250। हाँ तो एक पानी का 18 होता है ना भाई, 2H और एक O कितना होता है? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 अपॉन 250। 18 into 26 सर हमें वाले। कितना आएगा क्या हाँ पानी इज ऑलवेज 18 ओनली ना। अरे भाई H 2 है और एक O, तो कितना होता है? 26%. हाँ वेरी गुड। सर आप यही कर लो ना, 0 0 कट और 5 2 5 5 हाँ वो कर दिया 0 0 कट 25 1s are and 25 4s are 9 into 4 is 36%. Sir, I have a question. Yeah, tell me dear. H2 को 18 कैसे आया? अच्छा 18 का H2 का 18 कैसा है वो तो पूछ रही है? क्या? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का हाँ, got it. so it will become what 18। बाहर क्या लिखा था? 5। Got it. Okay, चलो I'll give you one more sum based on this। आपको इक्वेशन दे सकते हो डिहाइड्रेशन हाँ डिहाइड्रेशन का आपने लिखा नहीं क्या ब्रो? क्यों बे? क्वेश्चन कॉपी करने का था ना, मैं बोली थी ना तेरे को, मैं बोली थी ना तुमको। रुक जा, अभी मैं तुमको एक खुद से करने को बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको। अरे सॉरी, ये इसको मेरे को लेने दो। यही ढूंढना है क्या हाँ अच्छा हाँ परसेंटेज। लुक बेटा आई जस्ट वांट लुक बेटा, इसको ये कॉपी करने का था ना बेटा। तुझे क्या कॉपी करने का था? इक्वेशन। मतलब ये देखिए ये सम है, एग्जाम में ऐसा ही देगा बेटा। हाँ या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रियोल भी बोल सकते हैं इसको, पता है ना। इसको देखिए इक्वेशन दिया तो बेटा गर्म करते तो ये डॉट वाटर चला जाता है, डॉट वाटर चला जाता, समझा क्या? हाँ ये देखना पूरा। सर बिकॉज़ ऑफ वाटर ऑफ और वो वाइट बन जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है।
चलो बेटा अभी आगे बढ़े क्या? Yes, sir. Go down, go down. आगे बढ़ी क्या? Yes, sir. ठीक है ये, ठीक है ये, चलो कमोइन। Yes, ओके अभी आपको ये करना है। चल बेटा मैं अभी आपको ऐसा बोलूंगा फाइंड फाइंड फाइंड। अभी मैं तुमको एकदम स्पेसिफिक बोलता, फाइंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन ग्लोबल सॉल्ट, इन ग्लोबल सॉल्ट। और मैं आपको एग्जाम में ये सब दे दूंगा। Na होता है 23, ऑक्सीजन होता है, सॉरी तो ग्लोबल सॉल्ट का तो ढूंढ लिया ना हमने। कहाँ ढूंढा? परसेंटेज ऑफ वाटर बोला है तुमने। हाँ, ये ढूंढा है ना ग्लोबल सॉल्ट का। नहीं 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 नहीं। परसेंटेज है। अभी आपको परसेंटेज बोला है तो आप पहले पहले आंसर क्या करोगे? पहले आप है ना पूरा रामाम ढूंढोगे, रामाम फॉर्मूला। हाँ 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 हाँ, लेकिन पहले इधर लिखना तो पड़ेगा कि नहीं? ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था? Na2SO4. 10H2। Not 10. फिर आप लोग उसका क्या ढूंढोगे? रमम। Na है, S है, O है, 10H2O है। Na कितना था? 2 इठो। S कितना था? 1 2। O कितना था? 4 प्लस ये 10। H कितना है इसके अंदर? 2H। O कितना है? 1। 5 नहीं हो जाएगा। वो ऐसा नहीं, ऐसा अपन जो बोल रहे हैं वो डॉट को अलग लेने का कभी भी। तो ये कितना बनेगा? 2 × 23 प्लस 1 × 30 4 × 60 प्लस 10 × 2 × 1 प्लस 1 × 16। ओके अब देवी और संजना यहाँ पर देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा? 46 प्लस 32 प्लस ये कितना हो जाएगा? 64। ये देख 2 + 16 कितना हो जाता है? 18। 18 × 10 180। 180 अभी इसको पूरा ऐड करो कितना हो जाएगा? 322. 322. हो गया ये। Yes. लेकिन अपने को बोला क्या ढूंढने का है? परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर। चलो आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर पे सभी लोग। बेटा भी आप लोगों को इधर पे आने का है, वहां इधर में वन इंटू तो क्या? परसेंट 10H2O upon the परसेंटेज whole ऑफ, thing into हाँ 100. कितनी बार पानी था ये फॉर्मूला में देखना बेटा, कितने 10H2O. खड़े हो? 10 ग्राम। तो क्या करेगा बोलो बेटा? 10H2O अपॉन डॉट NH2। प्लीज ऐसे ये 10H2 कैंसिल नहीं होगा प्लीज, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा मास है ना बेटा। गर्ल्स आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. 322 Into 100. इनटू सांभर। सांबर. सांबर. 100 रुपया सांबर. गर्ल्स आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेल मी। Yeah, sir. विनी बेटा डू यू हैव डाउट? No, sir, I got. Now you got it ना? How you got this 18? You know one water is 18 ना? करो 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 चलो। डेसिमल में आएगा. Decimals में आएगा. हाँ बराबर बराबर. सच्ची बोल रहा, सच्ची में बराबर. क्या? 9,161. सिंपलीफाई कर. हाँ. सिंपलीफाई कैसे करते हैं अभी? चलो टन 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 टन। Sir, 55.9 I got. कितना रहा है? तो कैलकुलेट करके. अच्छा चलो मैं कर लेता हूँ, मैं आई हेल्प यू।
कितना आ रहा है A1000 9,000 upon Is it? 61. 180 into 100 is equal to 18,000 divide by 9,000 upon 61. 55.9 percentage. Yes, I got it correct. वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। चलो अभी बेटा कितना इजी बताओ मेरे को। यही तो बात है, अपने को मेन आज पार्ट करने का था तुम लोगों को, मालूम है क्या? ये हो गया क्या? रुको भाई, ए भाई देखो बेटा, मैंने आज आप लोगों को क्या क्या कराया, देखो एक मिनट सर, माफ करने दो। देखो इधर पे आ जाओ। लिसन लिसन ऑल ऑफ यू, कम टू पेज नंबर। टुडे आई स्टार्टेड विद पेज नंबर 11 में बेटा एक चीज मेरे को खाली बताने का है, आपको मैं बता दूंगा। लुक, आई डिड RAMM ये बेटा डेफिनेशन आता है। 11 1 अकरा तो नहीं बोला तो टीचर अकरा बोला ना, अकरा चुपचाप बैठने का, चुपचाप चुप। ओके ओके, पेज नंबर 11 बेटा आ जाने का आप लोगों को। बेटा ये देखो, कौन है? पता नहीं। कोई भूल के गया है? Yes. क्या नाम है? Sorry. अगस्त्य शर्मा। अगस्त्य सर वो 10th में है। नहीं नहीं, 9th स्टैंडर्ड में गया। अरे अभी टाइम में बोलो सर पता है वो कौन है? हाँ वो आएगा ना एकदम से दे देंगे। चलो एनीवेज बेटा, ये हो गया बेटा। फिर बेटा मैंने आपको आज हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया कि नहीं? पेज नंबर 12 पे NO2 ये देख रहा है बेटा? Yes sir. फिर कैल्शियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, Yes sir. येलो कलर अमोनियम। अरे वही ये रहे बेटा, हम लोगों ने ऐसा लिखा है एटॉमिक वेट, हम लोगों ने वो शॉर्टकट में किया बेटा। और क्या किया? अच्छे से किया है, ठीक है। ये सब वैल्यूज देते हैं वो लोग, समझा क्या? Yes sir. अच्छा अभी आप लोगों को क्या करना है, खुद से ये खुद से करोगे प्रैक्टिस। ओके Sir 12 वाला ना? ये RMM मॉलिक्यूलर वेट, RMM इजी है ना बेटा? Easy. इजी चीरी बॉय चिंदी। ओके ब्रेड का वो तो वो क्या है उसका आई वो तो जो क्या वो सब दिए ला, इधर भी देखेंगे क्या? आज देखेंगे तो कल खाएंगे ना बेटा। ये देख सब दिया है ना बेटा। फिर बेटा इधर पे आ जाओ। आज परसेंटेज बताया। हाँ परसेंटेज बताया कि नहीं आज? कार्बन, हाँ वो होमवर्क है, प्रैक्टिस। आज हम लोगों ने किया कि नहीं बोलो? Yes sir. फिर देखिए अपन ने आया था कि नहीं बोलो? Yes sir. फिर ये पहला बता था, वो प्रैक्टिस लिखा है ना, वो सब बता हुआ मैंने। फिर बेटा ये देख, ये NaOH का किया कि नहीं? Yes sir. देखा ये? अच्छा फिर ये देख, सेकंड वाला किया। तो अभी इसमें आपको ये दो पूरे करने हैं खुद के। ये इसमें वो लोग ने क्या, इसमें लेकिन क्या बोला है? परसेंटेज। इसमें आप किस किस का ढूंढोगे? K का, N का और O। यहाँ पे CA का, T का, O का। समझा क्या? क्लियर है? कोका कोका। वेट बेटा, अभी यहाँ पे देखो, प्लीज जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ पहला सुनो बात। आपको बेटा मैंने आपको पता है एक वर्कशीट अलग से दिया था। Yes sir. 2 वर्कशीट दिए थे हाँ, आपने। तो एक वो तो हाँ। मर्जिलस वाला है, एक तो- हाँ ये वाला भी जो वर्कशीट है, हाँ। इसमें आपको क्या करना है, सुनो बेटा। सर एक मिनट। बोलते जाता वो मार्क करते जाओ, बोलते जाएगा मैं वैसा तुम मार्क करते जाएगा। सर पर ये टेक्स्ट बुक में है सर यार इसका आंसर मैं अलग से देने वाला हूँ। सर इसमें था यस, तो दो आंसर इसके आंसर नहीं, ये पहला तुमको अभी ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आज, ठीक है। हाँ ये खुद से करना नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, डोंट वरी। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1 इसी के अंदर करना है सब। Yes sir. फिर अरे बाबा क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला वर्क, हाँ 1 वाला पूरा जितना आता है उतना करो, लेकिन पूरा हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये सब आगे तो लिखने छिक्केट विंकेट ये सब क्या चिंदी है बेटा, ठीक है ना। फिर ये वाला कर सकते हो। ये MCQ तो करना है, खाली ABCD सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। फिर ये भी करना है सर। हाँ, फिर नेम द फॉलोइंग यहाँ पे ही लिखना है, यहाँ पे ही लिखना है। क्वेश्चन 2 भी करना है पूरा, करना है बहरे, करना है,
ठीक है, टेक्स्ट से देख कर सकते हाँ कर सकते। नेम द फॉलोइंग, ये दिख रहा है बेटा, नेम द फॉलोइंग। यस सर। इसमें खाली यहाँ पे ही नाम लिख देना, यहाँ पर ही वर्कशीट के अंदर ही करने का, पूरा सर। पूरा जितना हो रहा है वो करना। एग्जाम के लिए पढ़ने का मैं और एग्जाम के लिए तेरे को बुकलेट दिया ना ये, और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, ये वाला मत करो, क्वेश्चन 4 नहीं करने का, क्वेश्चन 4 नहीं करने का। फिर ये क्वेश्चन पर खाली रीड करने का, लिखने का नहीं। कंप्लीट द टेबल, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का, इधर ही। हाँ ये पूरा ABCD पूरा, ठीक है। क्वेश्चन 6 करने का, इसमें मैच करने का, कौन किससे मैच हो रहा है। क्वेश्चन 7 मैच द कॉलम, ऐसा कर देने का यहाँ पे। बस आपको क्वेश्चन फिर से सुनो, बस वहां नहीं, क्वेश्चन 8 भी आएगा, क्लासिफाई करने का है इसमें। एक एलिमेंट रहेगा तो ई लिखने का, कंपाउंड रहेगा तो सी लिख देने का। और बस क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑड में आउट को सर्कल करने का इसमें, बस क्वेश्चन 9 तक। बस बस कंपाउंड, कंपाउंड है वाटर, कंपाउंड है। Sir, इसमें question 5 हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 तक, दैट्स इट। क्लियर है? बहुत अच्छा होमवर्क किया सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ओके, अच्छा सुनो, ये मैंने नोट्स दिया ना, उसमें आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व है। चलो बाय बाय। बाय सर। पूरा Bye, sir. टाइप Bye, sir. ये अनन्या, टेल मी बेटा व्हाट हैपेंड। No, I was just saying bye. बाय बाय विनी बेटा, बाय। Bye, sir. So I'm coming tomorrow at the cognoscenti. So will I be able to like collect whatever ओके, तो you व्हाट have आई डू given नो, आई now? कीप माय योर नोट्स एंड वर्कशीट आउटसाइड। ओके, Okay, okay. देयर I'll इज वन take it. प्लास्टिक का डब्बा बिलो अबाउ दिस, Hmm. ब्लू कलर का ये, ठीक है ना, वन ठीक प्लास्टिक है, का I'll take. डब्बा, यू विल सी ट्रांसपेरेंट वाला, उसके अंदर होगा सब। Okay, okay. I'll take it from there. या बाय 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 Bye. बाय। Bye, sir. बाय सर। अभी